بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے تو راستے میں ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجیے جیسے انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہے، ان کی عبادت برباد ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے اتنے معجزات اور اپنے اوپر انعامات دے چکے ہو، پھر بھی تمہارے یہ جہالانہ خیالات نہیں بدلے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ان ساتھیوں کی یہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا، تم سب یہاں ٹھہرو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا اور میرے پیچھے ہارون میرے نائب اور خلیفہ رہیں گے، ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوئی دور پر تشریف لے گئے اور اشارہ ربانی سے 30 دن رات کا مسلسل روزہ رکھا تاکہ اس کے بعد کلام ربانی سے مستفید ہو سکے۔ مگر 30 دن رات کی مسلسل روزہ سے جو ایک قسم کی بو روزہ دار کی منہ میں ہو جاتی ہے، یہ فکر ہوئی کہ اس بو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نامناسب ہے، پہاڑی گھاس کے ذریعے مسواک کر کے منہ صاف کر لیا۔ جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افطار کیوں کر لیا؟ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں، بلکہ صرف منہ صاف کر لینے کو پیغمبرانہ امتیاز کی بنا پر افطار کرنے سے تعبیر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے منہ کی بو دور کر کے صاف کر لوں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزہ دار کی منہ کی بو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ اب آپ لوٹ جائیں اور 10 دن مزید روزے رکھیے، پھر ہمارے پاس آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت 30 روز گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کے رخصت ہونے کے بعد اپنے قوم میں ایک خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جو تم نے عاریتاً مانگ رکھی تھی یا انہوں نے تمہاری پاس ودیعت امانت رکھوا رکھی تھی، وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہوں۔ اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریتاً اور امانت کی تھی، اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں ہماری چیزوں کی معاوضے میں ہم نے رکھ لی ہیں، مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کی عاریت اور امانت کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ، اور ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک گڑھا کھدوا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں خواہ زیورات ہو یا دوسرے استعمال کی اشیاء، سب اس گڑھے میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے اس کی تعمیل کی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سارے سامان کے اوپر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا، اور فرمایا کہ اب یہ نہ ہمارا رہا نہ ان کا۔ ان کے ساتھ ایک شخص سامری ایک ایسے قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا، یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اس میں زندگی اور نمو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے اس جگہ سے ایک موٹی مٹی کا اٹھا لیا، اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس کی مٹی میں کوئی فرعونی زیور وغیرہ ہے۔ اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گڑھے میں ڈالا ہے تم بھی ڈال دو۔ اس نے کہا کہ یہ تو اس رسول جبریل کی نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے، اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا بجوز اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لیے ڈالوں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا۔ اس نے وہ مٹی اس گڑھے میں ڈال دی، اور حسب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجیے۔ جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا، چاندی، لوہا، پیتل جو کچھ اس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے۔ ہارون علیہ
अलैहिस्सलाम दुआ कर चुके थे और वो कबूल हो चुकी थी। जो कुछ जेवरात और तांबा, पीतल, लोहा इसमें डाला गया था, सबका एक बिछड़ा बन गया जिसमें कोई रूह तो न थी मगर गाय की तरह आवाज निकलता था। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस रिवायत को नकल करते हुए फरमाया कि वल्लाह वो जिंदा आवाज नहीं थी बल्कि हवा इसके पिछले हिस्से से दाखिल होकर मुंह से निकलती थी, इससे ये आवाज पैदा होती थी। यह अजीब व गरीब किस्सा देखकर बनी इसराइल कई फिरकों में तकसीम हो गए। एक फिरका ने सामरी से पूछा कि ये क्या है? उसने कहा यही तुम्हारा खुदा है, लेकिन मूसा रास्ता भूलकर दूसरी तरफ चले गए। एक फिरका ने ये कहा कि हम सामरी की इस बात की इस वक्त तक तकजीब नहीं कर सकते जब तक मूसा हकीकत हाल बतलाए। अगर वाक़ियतन में यही हमारा खुदा है तो हम इसकी मुखालफत करके गुनहगार नहीं होंगे, और ये खुदा नहीं तो हम मूसा अलैहिस्सलाम के कौल की पैरवी करेंगे। एक और फिरका ने कहा कि ये सब शैतानी धोखा है, ये हमारा रब नहीं हो सकता, न हम इस पर ईमान ला सकते हैं न इसकी तस्दीक कर सकते हैं। एक और फिरका के दिल में सामरी की बात उतर गई और उसने सामरी की तस्दीक करके इसको अपना खुदा मान लिया। हारून अलैहिस्सलाम ने ये फसाद अजीम देखा तो फरमाया, ए मेरे कौम, तुम फितना में पड़ गए हो, बिलाशुबा तुम्हारा रब और खुदा तो रहमान है, तुम मेरा इत्तबा करो और मेरा हुक्म मानो। उन्होंने कहा कि ये बतलाया कि मूसा को क्या हुआ कि हमसे 30 दिन का वादा करके गए थे और वादा खिलाफी की, यहाँ तक कि अब 40 दिन पूरे हो रहे हैं। इनके कुछ बेवकूफों ने कहा कि मूसा अपने रब को भूल गए, इसके तलाश में फिरते होंगे। इस तरफ जब 40 रोजे पूरे होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हम कलामी नसीब हुआ, अल्लाह ताला ने इनको इस फितना की खबर दी जिसमें इनकी कौम मुब्तला हो गई थी। फरजा मूसा इला कौमिही ग़ज़बान असिफा, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से बड़े गुस्से में और अफसोस की हालत में वापस आए और आकर वो बातें फरमाई जो कुरान में तुमने पढ़ी हैं। व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरअसी अख़ीही यजुर्रुहु इलैहि, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने इस गुस्से में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचे और अलवाह तौरात जो कोई दूर से साथ लाए थे हाथ में से रख दी। फिर गुस्सा फुरू होने के बाद भाई का उज़र सही मालूम करके इसको कबूल किया और इसके लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया। फिर सामरी के पास गए और इससे कहा कि तूने ये हरकत क्यों की? उसने जवाब दिया, अबस तो क़ब्ज़तम मिन अथर रसूल, यानी मैंने रसूल जिब्रील अलैहिस्सलाम की निशाने कदम की मिट्टी उठा ली थी और मैंने समझ लिया था कि ये जिस चीज में डाली जाएगी इसमें हयात की आसार पैदा हो जाएंगे, मगर मैंने तुम लोगों से इस बात को छुपाए रखा। फनबस्तुहा व कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, यानी मैंने इस मिट्टी को, मेरे नफ्स ने मेरे लिए ये काम पसंदीदा शक्ल में दिखला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को फरमाया कि जा, अब तेरी सजा ये है कि तू जिंदगी भर ये कहता फिरे कि मुझे कोई मस ना करे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा, और तेरे लिए एक मियाद मुकर्रर है जिसके खिलाफ नहीं होगा कि जिंदगी में तू ये अजाब चखता रहे। और ये देख अपने इस माबूद को जिसने तूने परस्तिश की है, हम इसको आग में जलाएंगे फिर इसके राख को दरिया में बहा देंगे। अगर ये खुदा होता तो हमको इस अमल पर कुदरत ना होती। इस वक्त बनी इसराइल को यकीन आ गया कि हम फितना में मुब्तला हो गए थे और सबको उस जमात पर गब्त और रश्क होने लगा जिसकी राय हजरत हारून अलैहिस्सलाम के मुताबिक थी, यानी ये हमारा खुदा नहीं हो सकता। बनी इसराइल को अपने इस गुनाह अजीम पर तंबिया हुआ तो मूसा से कहा कि अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए तौबा का दरवाजा खोल दे जिससे हमारे गुनाह का कफारा हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस काम के लिए बनी इसराइल में से 70 ऐसे सुलहा नेक लोगों का इंतखाब किया जो पूरी कौम में नेकी और सलाह में मुमताज थे और जो उनके इल्म में गौशाला परस्ती से भी दूर रहे थे। इस इंतखाब में बड़ी छानबीन से काम लिया। इन 70 मुंतखब सुलहा बनी इसराइल को साथ लेकर कोई दूर की तरफ चले ताकि अल्लाह ताला से इनकी तौबा कबूल करने के बारे में अर्ज करे। मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर पहुँचे तो जमीन पर ज़लज़ला आया जिससे मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शर्मिंदगी वफ़द के सामने हुई और कौम के सामने भी। इसलिए अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, अगर आप इनको हलाक ही करना चाहते थे तो इस वफ़द में आने से पहले हलाक कर देते और मुझे भी इनके साथ हलाक कर देते। या आप हम सबको इसलिए हलाक करते हैं कि हम में कुछ बेवकूफों ने गुनाह किया है। और दरअसल वजह इस ज़लज़ले की ये थी कि इस वफ़द में भी हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम की तहकीक व तफ्तीश के बावजूद कुछ लोग इनमें से शामिल हो गए थे जो पहले गौशाला परस्ती कर चुके थे और इनके दिलों में गौशाला की अजमत बैठी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ और फरियाद के जवाब में इरशाद हुआ, मेरे रहमत तो सबको शामिल है और मैं अनकरीब लिख दूंगा कि अपनी रहमत का परवाना उन लोगों के लिए है जो तकवा इख्तियार करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं और जो इत्तबा करते हैं इस रसूल उम्मी का जिसका जिक्र लिखा हुआ पाते हैं अपने पास तौरात और इंजील में। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैंने आपसे अपनी कौम की तौबा के बारे में अर्ज किया था। आपने जवाब में रहमत का अता फरमाना मेरे कौम के अलावा दूसरी कौम के मुतालिक इरशाद फरमाया, तो फिर आपने मेरे पैदाइश को मौखर क्यों ना कर दिया कि मुझे भी इस नबी उम्मी की उम्मत मरहुमा के अंदर पैदा फरमा देते। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल की तौबा कबूल होने का एक तरीका इरशाद हुआ। इनकी तौबा कबूल होने की सूरत ये है कि इनमें से हर शख्स अपने मुतालिकीन में से बाप या बेटे जिससे मिले इसको तलवार से कत्ल कर दे उसी जगह में जहाँ ये गौशाला परस्ती का गुनाह किया था। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की वो साथी जिनका हाल मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम ना था और इनके बेकसूर साले समझ कर साथ लिया था, मगर दर हकीकत उनके दिल में गौशाला परस्ती का जज्बा अब तक था। वो भी अपने दिल में नादम होकर तायब हो गए और उन्होंने अपने इस शदीदी हुक्म पर अमल किया जो इनकी तौबा कबूल करने की बतौर कफारा नाफिज किया था, यानी अपने अजीज व क़रीब का कत्ल। और जब इन्होंने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने कातिल और मक़तूल दोनों की खता माफ फरमा दी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के अलवाह जिनको गुस्से से रख दिया था उठाकर अपने कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दसा शाम की तरफ चल दिए। वहाँ एक ऐसे शहर पर पहुँचे जिस पर जब्बारीन का कब्जा था, जिनकी शक्ल व सूरत व कद व कामत भी हैबतनाक थे। इनकी जुल्म व जवार और कुव्वत व शौकत के अजीब व गरीब किस्से इनसे कहे गए। मूसा अलैहिस्सलाम इस शहर में दाखिल होना चाहते थे, मगर बनी इसराइल पर इन जब्बारीन के हालात सुनकर रौब छा गया और कहने लगे, ए मूसा, इस शहर में तो बड़े जब्बार जालिम लोग हैं जिनके मुकाबले की हम में ताकत नहीं और हम तो इस शहर में इस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक ये जब्बारीन वहाँ मौजूद हैं। हाँ, वो यहाँ से निकल जाए तो फिर हम इस शहर में दाखिल हो सकते हैं। रजुलानी मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून से मुराद कौम जब्बारीन के दो आदमी हैं जो इस शहर से आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। उन्होंने बनी इसराइल पर अपने कौम का रोब तारी देकर कहा कि हम अपनी कौम के हालात से खूब वाकिफ हैं कि तुम इनकी डेल व डोल और इनकी जिसामत और उनकी बड़ी तादाद से डरो नहीं। हकीकत यह है कि इनमें दिल की कुव्वत बिल्कुल नहीं और न मुकाबले करने की हिम्मत है। तुम जरा शहर के दरवाजे तक चलो तो देख लेना कि वो हथियार डाल देंगे और तुम ही इन पर गालिब आओगे। बनी इसराइल ने इन दोनों आदमियों की नसीहत सुनने के बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम को बेहुदगी से जवाब दिया, ए मूसा, हम तो इस शहर में इस वक्त तक हरगिज न जाएंगे जब तक जब्बारीन वहाँ मौजूद हैं। अगर आप उनका मुकाबला ही करना चाहते हैं तो आप और आपका रब जाकर इनसे लड़ बढ़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम बनी इसराइल पर हक ताला के बेशुमार इनामात के साथ हर कदम पर इनकी सरकशी और बेहुदगी का मुशाहिदा करते आ रहे थे, मगर इस वक्त तक सब्र तहम्मुल से काम लेते रहे, कभी उनके लिए बदुआ नहीं की। इस वक्त इसके इस बेहुदा जवाब से वो बहुत दिल शिकस्ता और गमगीन हो गए और उनके लिए बदुआ की। इनके हक में फासिकीन के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। हक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और उनको अल्लाह ताला ने भी फासिकीन का नाम दे दिया और इस जमीन मुकद्दस से उन लोगों को 40 साल के लिए महरूम कर दिया और इस खुले मैदान में उनको ऐसा कैद कर दिया कि सुबह से शाम तक चलते रहते थे, कहीं करार ना था। मगर चूंकि अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इनके साथ थे, उनकी बरकत व तुफैल से इस कौम का फासिकीन भी इस सजा के दौरान भी अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें बरसती रही। इस मैदान में जिस तरफ चलते थे बादल इनके सरों पर साया कर देता था, उनके खाने के लिए मनो सलवा नाजिल होते थे, इनके कपड़े मौजज़ाना अंदाज से ना मैले होते थे ना पटते थे और इनको एक मुरब्बा पत्थर अता फरमा दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया था कि जब इनको पानी की जरूरत हो तो इस पत्थर पर अपनी लाठी मारो, तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो जाते थे। पत्थर की हर जानिब से 3 चश्मे बहने लगते थे और बनी इसराइल की
12 قبیلوں میں یہ چشمے متعین کر کے تقسیم کر دیے گئے تھے تاکہ باہم جھگڑا نہ پیدا ہو، اور جب بھی یہ لوگ کسی مقام سے سفر کرتے اور پھر کہیں جا کر منزل کرتے تو اس پتھر کو وہی موجود پاتے تھے۔